Today's topic is humerus bone. In earlier video we discussed about the clavicle bone and scapula bone, and in this video we are going to discuss about the humerus bone. For studying the humerus bone we will divide into three aspects: upper end, shaft and lower end. In upper end, shaft and lower end. Upper end includes 7 parts. Shaft includes upper half, lower half, and lower end includes 2 parts which also includes a subdivision. First, in upper part includes head. Head is projected vertically. Her head is projected medially and superiorly and articulates with the glenoid cavity of scapula to form glenohumeral joint, और we can say shoulder joint. इसका मतलब जो ये हेड है वो मीडियली और सुपीरियरली लाई करता है और ग्लिनॉइड कैविटी के साथ मिलकर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बनाता है, जिसे हम शोल्डर जॉइंट बोलते हैं. अब सेकेंड पार्ट हमारे पास एनाटॉमिकल नेक. जो एनाटॉमिकल नेक होता है ये एक एरिया है, ये वाला एरिया हेड और दोनों ट्यूबरकल्स के बीच का एरिया, और वी कैन से इट इज़ एन एरिया बिटवीन द हेड एंड द ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस. नाउ वी आर ऑन लेसर ट्यूबरकल एंड ग्रेटर ट्यूबरकल. This is greater tubercle and this is lesser tubercle. Greater tubercle and lesser tubercle serves as the site of attachment points for the major muscles of your shoulder. So we can say this serve as site of attachment of points for the major muscles of your shoulder. Now includes surgical neck of humerus. Surgical neck, we can say in anterior view, this is surgical neck. It is an area found distal to the tubercles, and is a common site for fractures of humerus. Okay, so we can say surgical neck is serve as a common site of attachment fractures. And one more main point, it is in close contact with the two other important structures, which are axillary nerve and posterior humeral circumflex artery. Okay, now we have fourth intertubercle circus, which are present between both the tubercles of the humerus bone. Now morphological neck, we can see in posterior view, this is morphological neck. Okay, so we have covered the upper end of the humerus bone. Now we will cover the shaft of humerus bone. Shaft of humerus bone has upper half and lower half. Upper half is rounded and lower half is triangular. अगर triangular है तो it must have some borders, which includes anterior border, medial border, lateral border. We can explain it to diagram. Anterior border form lateral lip of sulcus. Medial border forms middle lip of intertubercle sulcus. This is anterior border, this is medial border. ये फॉर्म करता है लेटरल लिप ऑफ सल्कस, ये फॉर्म करता है मिडल लिप ऑफ सल्कस. और बाय दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज मीडियल बॉर्डर एंड दिस इज लेटरल बॉर्डर. जब अगर एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में होगा तो एंटीरियर मीडियल सरफेस, और एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में होगा तो एंटेरो लेटरल सरफेस, एंड थर्ड सरफेस इज पोस्टीरियर सरफेस. जो एंटेरो लेटरल सरफेस होता है वो मार्क्ड होता है डेल्टा ट्यूबरसिटी से. एंटेरो मीडियल सरफेस होता है जो वो फ्लोर ऑफ इंटर ट्यूबरकल सर्कस बनाता है, और पोस्टीरियर सरफेस हैज़ रेडियल ग्रूव, और जब इसके अंदर होती है रेडियल नर्व और प्रोफंडस ब्रेकियाई आर्टरी. इसका मतलब अगर हम रेडियल ग्रूव को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रेडियल नर्व और प्रोफंडस ब्रेकियाई. जो मीडियल और एंटीरियर बॉर्डर होता है वो क्या बनाते हैं? फ्लोर. किसका? इंटर ट्यूबिकुलर सर्कस का. ओके, नाउ वी हैव कवर्ड द सरफेसेस शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस. नाउ वी विल कवर द लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस. लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस हैज़ two surfaces. One are articular parts and one is non-articular parts. Articular parts नाम से मतलब समझ आ रहा है जो किसी बोन से आर्टिकुलेट करे, और नॉन आर्टिकुलेट जो नहीं करे. तो आर्टिकुलेट हैज़ कैपिटुलम एंड ट्रॉक्लिया. कैपिटुलम किससे करती है? रेडियस से. ट्रॉक्लिया किससे करती है? अल्ना से. हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? CR मीन्स क्लास रिप्रेजेंटेटिव. C कैपिटुलम एंड R इज रेडियस. और ट्रॉक्लिया किससे करती है? अल्ना से.
नॉन आर्टिकुलर सरफेस पे, नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स में आता है लेटरल एपिकॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइलर रिज, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, कॉर्नोइड फॉसा, रेडियल फॉसा, कॉर्नोइड फॉसा, रेडियल फॉसा and olecranon fossa. Okay, now we have all the parts. Now we will see in the diagram. This is medial epicondyle, this is lateral epicondyle. Lateral epicondyle के ऊपर होता है lateral epicondylar ridge और we can say lateral supracondylar ridge, और medial epicondyle के ऊपर होता है medial supracondylar ridge, और ये है coronoid fossa जो कि anterior view में मिलता है। यहाँ है रेडियल फॉसा, और जो ओलिक्रोनॉल फॉसा है वो पोस्टीरियर व्यू में होता है। जो कॉर्नोइड फॉसा है वो जस्ट अबव द ट्रॉक्लिया होता है इन एंटीरियर एस्पेक्ट। ये गड्ढा होता है ट्रॉक्लिया के ऊपर, और जो रेडियल फॉसा होता है ये कैपिटुलम के ऊपर एक गड्ढा होता है। नाउ वी हैव ओलिक्रोनॉल फॉसा जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है जस्ट अबव द ट्रॉक्लिया। अब हमने पूरी ह्यूमरस बोन देख ली। नाउ वी विल रिवाइज इट। ह्यूमरस बोन हैज़ अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। अपर एंड हैज़ 7 parts which has head, anatomical neck, lesser tubercle, greater tubercle, intertubercular sulcus, surgical neck and morphological neck. Shaft has upper half, lower half. Upper half is rounded, lower half is triangular which has anterior border, medial border and lateral border. Lower end has articular part, non-articular part. Articular part has capitulum and trochlea. Lower part has medial epicondyle, lateral supracondylar ridge, medial supracondylar ridge, coronoid fossa, radial fossa and olecranon fossa. अब जो होता है कॉर्नोइड फॉसा एंड रेडियल फॉसा ये एंटीरियर एस्पेक्ट में होता है, और ओलिक्रोनॉल फॉसा पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है। अब हमने देख लिया, पूरी ह्यूमरस बोन ऑलमोस्ट देख लिया है। मैं लास्ट में कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगी। हमारे पास होती है कॉर्नोइड प्रोसेस, कॉर्नोइड फॉसा, कोरिकोइड प्रोसेस, कॉन्डाइलर प्रोसेस। अब कंफ्यूज ना हो इसलिए हम इन्हें एक साथ याद करेंगे। ये जो होता है ये अल्ना में होता है, ये होता है ह्यूमरस में, ये होता है स्कैपुला में, और ये हमारे पास होता है मैंडिबल में। ओके, अब ये हमारी इजी हो जाए इसलिए हम इन्हें साथ में रिवाइज करेंगे। अभी हमने देखा कॉर्नोइड फॉसा जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट में था ह्यूमरस बोन में। ओके, अब हमारी ह्यूमरस बोन कवर हो गई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और डेली वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।